Welcome you all. Myself Pransu Kumar Pathak, and today we will discuss on proteomics. Okay. So first of all, what is proteomics? So DNA is the same in whole organism, but DNA to protein. Suppose two organisms have same DNA. That, for example, these two butterflies have the same genomic sequence, but they are phenotypically very different. You know why? Because from DNA to protein there are so many intermediate steps which can change the nature of protein. Okay, so these can be the simple mutation in the genomic region, and gene undergo editing through RNA editing. RNA editing होती है, and RNA splicing, or maybe transcriptional change, maybe translational change, post translational modification, or the epigenetic change. Environment and genetic composition also interact to give the phenotype. So maybe the genome is same, but they are entirely very different. Why? Due to these are the factor which I have already told you. These are the simple mutation, RNA splicing, RNA editing, transcriptional change, post translational change, or epigenetic modifications. Okay, so let understand the basic central dogma of the life, that is the central dogma of biology also. So you all know about that DNA is a genetic material, and this genetic material have capacity to replicate DNA on self. So DNA पे DNA का बनना, that is called as replication, and DNA undergo transcription to give the messenger RNA or RNA. Okay, so for protein we have to focus on mRNA. Okay, there are others RNA also, so that is not under my discussion right now. So we have to understand that DNA undergo transcription and give rise to messenger RNA. Okay, and again RNA can give rise to DNA also, that is called as reverse transcription. You know already about reverse transcription, so I will not go in details in this video. And this RNA again undergo translation to give rise protein. So protein are the structural and functional of a living cell. So if you want to study the function of a living cell, then you have to understand the whole genetic central dogma of the biology. Understand the basic how a DNA can change into a protein. This is multi-step reaction, so each and every reaction have their own role, and each and every reaction undergoes some modification as post-transcriptional modification or post-translational modification, and these all modification can be found in protein. After post-translational modification, protein, that is known as post-translational modification, give rise to enzymes also, and these enzymes are basically have their own functions. I think now I have to go to the next slide. Okay, so beyond the genome, I have already told about that genome is the same but different proteome. Why? I have already discussed to you. So let's start the protein. Why we need to understand, and why we have to study about protein. What is the need to study protein? So they serve as a catalyst that maintain metabolic process in the cell. They serve as a structural element both within and outside the cell. So they are signal secreted by one cell or deposited in extracellular matrix that are recognized by other cell. So they are receptors that convey information about extracellular milieu to the cell. This serves as intracellular signaling components that mediate the effects of receptors. They are key components of machinery that determine which genes are expressed and whether mRNA
are translated into protein or not. So they are involved in manipulation of DNA and RNA through processes such as DNA replication, DNA recombination, RNA splicing, editing, and there are other changes also that takes during transcriptional change and post-translational change. So epigenetic modification is also taken under consideration. So my dear friend, I have to go to the each and every unit that we have to understand in Hindi also. So क्या होता है जब आपके पास एक सेल होता है और एक दूसरा सेल होता है, सपोज यू हैव टू सेल्स ए एंड बी, दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, बट प्रोटीन क्या क्या हो सकता है, तो आपको सबसे पहले बताएं ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए किसी भी सेल में रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट अंदर और बाहर दोनों के लिए सेल के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ऐसे आपने भी पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लिपिड मेम्ब्रेन के पास में या तो आपको इंटीग्रल प्रोटीन्स मिलेंगे या तो सरफेस प्रोटीन मिलेंगे या फिर हाइड्रोफोबिक कोर में भी हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स भी मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। सो इनसाइड आउटसाइड क्या है कि प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा उपयोग पड़ता है। एज ए सिग्नल सेक्रेटेड वन सेल, जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी आपने पढ़ा होगा, तो प्रोटीन में भी द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो एक जगह से दूसरे जगह पे मैट्रिक्स में या तो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में क्या करता है, मदद करता है। तो प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन इवन रिसेप्टर हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा RAVR कॉम्बिनेशन, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस में क्या होता है, एक R होता है और एक AVR होता है। जो प्लांट पैथोजन पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो R जो होता है वो रेजिस्टेंट जीन होता है जो कि आपके प्लांट में डेवलप होता है, और AVR एक पैथोजेनिक प्रोटीन है जो पैथोजन से होता है। अगर RAVR कॉम्बिनेशन मैच करता है, यानी दोनों का रिसेप्टर एक दूसरे से मैच करता है, तो क्या होता है, वो प्लांट रेजिस्टेंसी शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिसेप्टर की तरह भी आपको इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर वैल्यू के साथ जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फॉर्मेंट है उससे आपको क्या करता है, प्रोटीन एक दूसरे को इंटरेक्ट करा रहा होता है। आपको ऐसे भी मैंने अभी बताया कि सिग्नलिंग कंपोनेंट्स हैं जो कि एक रिसेप्टर मेडिएटेड भी वो कर सकते हैं, जैसे RAVR का कहानी मैंने आपको बताया। ठीक है, दे आर की कंपोनेंट्स of the machinery that determine which genes are expressed, whether the mRNA translate into protein or not. Suppose क्या होता है ना, प्रोटियोम जो होता है एक स्नैपशॉट होता है एक पर्टिकुलर समय पे, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्पेसियो टेम्पोरल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ऐसा नहीं है कि जब आप सेल का जब आप प्रोटीन निकाल रहे हैं तो उस समय सब कुछ आपको एक समय पे एक ही तरह के जीन निकलेंगे। अगर आप दूसरी बार आप उसी से प्रोटीन निकलेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम जो प्रोटीन हो सेकंड टाइम भी सेम टाइप ऑफ प्रोटीन मिले। मतलब ये है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम प्रोटीन इज अ स्नैपशॉट। मतलब कि एक स्नैपशॉट है, मतलब उस पर्टिकुलर इंटरवल और पर्टिकुलर पॉइंट डिफरेंस में ही क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि वो उसमें कौन कौन से प्रोटीन थे। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि अब जैसे RNA बना, इसलिए तो हम कहते हैं हर लेवल पे बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्ट लेवल, आप ट्रांसक्रिप्ट तो बन रहे हैं बट वो ट्रांसलेट नहीं हो रहे। सपोज इसको समझने के लिए हम आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें हटाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, mRNA बहुत बन रहा है, DNA से मैसेंजर RNA बहुत बन रहा है। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी है इसको प्रोटीन में नहीं बदल रहा है, प्रोटीन कम बन रहा है। तो ओवरऑल प्रोटीन तो कम है लेकिन ट्रांसक्रिप्ट ज़्यादा है। कभी कभी देखते होंगे जब आप रियल टाइम करते होंगे तो जीन का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जब आप उसको प्रोटीन को एक्सप्रेस करा करके आप उसको देखना चाहते हो तो प्रोटीन मिल ही नहीं रहा था, आपको प्रोटीन बहुत कम दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ये ट्रांसलेशन की जो क्रिया हो रही है उस सेल में कम हो रही है, या इंटरप्ट हो रही है, या फिर किसी तरीके से स्प्लाइस हो रहा है, एडिटिंग हो रही है, या फिर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है कि ट्रांसक्रिप्ट तो बन रहे हैं मगर प्रोटीन के लेवल में क्या हो जा रही है, कमी आ जा रही है। ठीक है, ये सारे टेक्निक्स के बारे में हम अपकमिंग लेक्चर में आपको बताएंगे। ये बहुत ही बढ़िया लेक्चर है, इसको आप अगर अच्छे से देखेंगे तो शायद आपको कई टेक्निक्स के बारे में थोड़ी सी आइडिया आपको मिलेगी। ओके, सो प्रोटियोम, व्हाट इज प्रोटियोम? सो प्रोटीन कंप्लीमेंट टू जीनोम। किसी भी जीनोम का कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई ना कोई उसका प्रोटियोम होगा, और एक जीनोम का कई प्रोटियोम हो सकता है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। ठीक है,
और एक आप ये भी पढ़े होंगे कि एक जीन वन प्रोटीन, बट ये थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई जब प्रोटियोमिक्स को हम पढ़ने लगे। प्रोटियोमिक्स में क्या हो सकता है, सिंगल जीन हैव मल्टीपल प्रोटीन। सो व्हाट इज प्रोटियोम, तो प्रोटियोम इज जस्ट ए कंप्लीमेंट ऑफ द जीनोम। So it can variable in different cell and tissue type in the same organism, because if you suppose you have control and treated the same cell, if you treat something, then the level of protein or the protein pattern will not be the same, it will differentiate different growth and development stage of the organism। जैसे हो सकता है कि अभी जो है वो शूटिंग स्टेज में हो, रूटिंग स्टेज में हो, तो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग डेवलपमेंट, समझो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, अभी जस्ट आप इसमें प्लेम्यूल और रेडिकल बने हैं तो वहाँ पर अलग होगा। कोटिलिडन जब डेवलप हो रही है प्लांट के अंदर तो उस समय एक्सप्रेशन उनके अलग होंगे। ठीक है, सपोज आपके पास एक अराबिडोप्सिस थैलियाना का प्लांट है, ठीक है, तो जब ये सीड में है तो सीड के अलग प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, जब ये सीडलिंग स्टेज में आएगा तो अलग इसमें आएंगे। ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाएंगे, जब आप लीफ लेंगे, सिलिक लेंगे और अलग अलग अराबिडोप्सिस थैलियाना प्लांट के अगर अलग अलग लीफ सैंपल लेंगे, टिश्यू सैंपल, अलग अलग टिश्यू सैंपल लेंगे, तो सारे जो प्रोटीन के जो सारे अल्टरनेट फॉर्म्स हैं वो सारे डिफ्रेंशिएटेड मिलेंगे, सारे प्रोटीन एक जैसे नहीं मिलेंगे, डिफ्रेंशिएशन आपको हर प्रोटीन में आपको मिलेगा। तो क्या होता है, सारे चीज़ बहुत डायनामिक होते हैं, डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ जीनोम to the environmental factor. So environmental factor decide a lot to genome to proteome. So disease state आप देख सकते हैं, ड्रग चैलेंज देख सकते हैं, ग्रोथ कंडीशन देख सकते हैं, स्ट्रेस देख सकते हैं, यानी different environmental factor you can give to the particular cell, to the same cell, and you can notice that two same cell having the different proteomics nature. So what is proteome again? So proteome क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया, प्रोटियोम ऑफ ए सेल रिफ्लेक्ट द इमीडिएट इन्वायरमेंट इन विच दे आर स्टडीड। कहने का मतलब क्या है, इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल एक्सटर्नल cues, protein can modify by post translational modification, undergo translocation within the cell or synthesis or degradation। ठीक है, ये ट्रांसलोकेट कर सकता है या तो डिग्रेड हो सकता है यूबिक्विटिनाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू, या तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आपने पढ़ा है, ग्लाइकोसाइलेशन है ना, फॉस्फोरिलेशन, मिथाइलेशन एंड सो फोर्थ। देयर आर सो मेनी डिफरेंट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस प्रोसेसेस। सो हम उसके पे नहीं जाएंगे अभी, बस ये मुझे बताने हैं आपको कि इन्वायरमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So I have already told you that is the proteomics is a snapshot of the protein environment at a given time interval. So this is also known as spatio-temporal gene expression or protein expression. So that is the genome, transcriptome, proteome and metabolome. You can see here that the level of complexity is increasing as we go from genome to proteome and then metabolome. कहने का मतलब क्या है, जीन सेम रहेंगे, ट्रांसक्रिप्ट्स उसके और भी ज़्यादा बनेंगे, प्रोटीन तो पता नहीं कितने बनेंगे और मेटाबोलाइट उससे पता नहीं और कितने सारे बनेंगे। सो दिस फैक्टर कैन डिसाइड दैट द एरिया अंडर कर्व कैन डिनोट द वर्सेटिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ जीनोम टू द मेटाबोलोम। जैसे जैसे आप जाएंगे जीनोम से प्रोटियोम और मेटाबोलोम की तरफ, वैसे वैसे क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, क्या है, इज अ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीनोम। प्रोटियोम क्या है, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है जीनोम का। द कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेस एंड मॉडिफाइड बाय द सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टाइम। मतलब एक टाइम स्नैपशॉट पर क्या हो रहा है, ये आपको प्रोटियोम की स्टडी से आपको मिलेगा। प्रोटीन और अ फिजिकल इंटरफेरेंस बिटवीन जीनोम एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि क्या क्या हो सकता है प्रोटीन के साथ। सो डियर फ्रेंड, टाइप्स ऑफ प्रोटियोमिक्स एंड देयर एप्लीकेशन इन बायोलॉजी। सो दिस इज योर प्रोटियोमिक्स, and proteomics is not a very simple subject, it's differentiated into so many things. So you can do proteome mining,
functional proteomics, a structural proteomics, protein interaction you can check, and you can check post translational modification and protein expression profiling you can do. So these things, where these things can be used, so proteome mining is used for drug discovery, target identification and validation and differential display. फंक्शनल जीनोमिक्स आप ईस्ट के जीनोम के साथ कर सकते हैं, जैसे ईस्ट टू हाइब्रिड करके आप देख सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं, प्रोटीन एफिनिटी को प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ आप क्या कर आईपी करके इम्यूनो प्रेसिपिटेशन करके आप क्या चेक कर सकते हैं दो प्रोटीन कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. या आप नॉकआउट और नॉक इन मैं बताऊंगा, नॉकआउट कैसे कर सकते हैं, नॉकडाउन कैसे कर सकते हैं, नॉक इन कैसे कर सकते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स वी विल डिस्कस इन द फर्दर अपकमिंग लेक्चर्स. ओके, सो स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स क्या होता है, चाहे वो ऑर्गेनेल का कंपोजिशन आपको निकालना हो, सब प्रोटियोम आइसोलेट करना हो, या किसी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को पढ़ना हो, या किसी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में से पर्टिकुलर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकालना हो, दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स एंड यू कैन डू क्रिस्टलोग्राफी ऑल्सो. ठीक है. अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा तो उसमें ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है, प्रोटियोलिसिस हो सकती है, फॉस्फोरिलेशन हो सकता है, मिथाइलेशन हो सकता है, ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है, और सो एंड सो फोर्थ, और भी कई हो सकते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. ठीक है. प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए कोआईपी, फास्ट डिस्प्ले and S2 hybrid, three techniques are very very important. This I will discuss in upcoming lectures. So I have already told you that as you will go from genome to proteome to a particular phenotype, the complexity of the particular organism and particular instant will increase drastically. Why? Let's try to know. At genome, it's very simple, that is the DNA, that is the only one thing. When it go under transcription, it can go under alternative splicing, and so many types of splicing is there, and then 5' capping will take place, and poly-A tailing is also very important, and then this undergo under translation. So codon is also important. Then I will discuss in upcoming slides also that how this interaction genome to proteome, genome to transcriptome, transcriptome to proteome, and proteome, one protein can interact with the second one, that is known as interactome, because when two protein interact each other, then this study is known as interactome, and each and every protein can undergo to give rise a particular phenotype, and this molecular function can be studied to the particular phenotype. So this is the whole process, and this is the way to complex genome. So this is the same thing. You can see here that genome denoted by DNA, genome से आपको DNA मिलेगा. ट्रांसक्रिप्टोम अगर आपको स्टडी करना है तो आपको RNA पे काम करना होगा. ये सब चीज़ें आपको अपकमिंग लेक्चर्स में फिर आपको धीरे धीरे याद आएगा जब हम पार्टिकुलर एक एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे आपके सामने. आई विल गिव यू द रियल फ्लेवर ऑफ द टेक्निक. कैसे कैसे इसी सारे मटेरियल तो यही है ना, बायोमोलिकुल तो इतना ही है ना, आपको स्टडी तो इतना ही करना है. चाहे जीनोम स्टडी, DNA स्टडी कीजिए, RNA स्टडी कीजिए, प्रोटीन स्टडी कीजिए, चाहे cDNA का स्टडी कीजिए, आप करेंगे तो यही. बहुत ज़्यादा तो आप शुगर का कंपोजिशन चेक कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड और लिपिड की आप स्टडी कर सकते हैं. दीज ऑल थिंग्स कवर इनटू द मेटाबोलाइट. So study of metabolite is very tedious, and I belong to personally metabolite, and our group work on secondary metabolites, plant secondary metabolite, which is much more difficult in comparison to DNA, RNA, protein, because we are working on metabolites, and metabolomics is much more tedious in comparison to the any other thing. So I think you understand the complexities. So tools and techniques, जैसे कि जीनोमिक्स में क्या क्या टेक्निक यूज होता है और फंक्शनल प्रोटियोमिक्स में क्या क्या चीज़ होता है. तो आपके पास डेटा के सेट्स क्या क्या हो सकते हैं. आपके पास डायनेमिक्स हो सकता है, प्रोटीन की अबंडेंस हो सकती है, इंटरेक्शन हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, क्लिनिकल प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, किसी प्रोटीन को लोकलाइज कर सकते हैं, आइसोफॉर्म कर सकते हैं, या फिर उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं.
ठीक है। और इसके लिए मेथड आप क्या क्या यूज करेंगे, तो अगर आपको स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करना है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर के लिए क्रिस्टलोग्राफी है, एनएमआर है, ठीक है, और मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू आप पता कर सकते हैं उसके अबंडेंस और डायनेमिक्स कि उसके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बना हुआ है। आप प्रोटीन हाइब्रिड सिस्टम के थ्रू आप लोकलाइज कर सकते हैं और प्रोटीन के लोकलाइजेशन को भी चेक कर सकते हैं। चाहे आप फ्लोरेसेंस कर सकते हैं, प्रोटीन में आप अरे कर सकते हैं, क्लिनिकल अरे कर सकते हैं, एंटीबॉडी से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इधर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जब जीनोमिक्स डेटा सेट में आप जाएंगे तो जीनोम में आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। आप जीन की एक्सप्रेशन चेक करते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आप जीन का ट्रांसक्रिप्ट चेक करते हैं कि ये कितना बन रहा है, आरएनए कितना बन रहा है, तो इसके लिए आप रियल टाइम लगाते हैं, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी टेक्निक्स, आई थिंक रियल टाइम इज डिस्कस, यू कैन गो एंड चेक अबाउट द रियल टाइम, ठीक है। स्प्लाइसिंग, जीनोमिक्स, cellular alteration, cellular phenocopy and phenotype of particular organism. So these all data set can be studied through DNA microarray that I will discuss, DNA barcoding, cellular gene expression profile, synthetic biology. synthetic biology, synthetic genetics में आज हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं दो टेक्निक, दैट इज CRISPR Cas9 और RNAi। और फॉरवर्ड और रिवर्स जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, एक होता है फिनोटाइप और दूसरा होता है जीनोटाइप। तो अगर आप फिनोटाइप के थ्रू अगर जीनोटाइप के पास जा रहे हैं तो एक कहलाता है आपका फॉरवर्ड जेनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास कोई जीन का इंफॉर्मेशन है और आप उसके फिनोटाइप को पता करना चाहते हैं कि इस जीन को अगर हम म्यूटेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है और इस जीन का क्या फंक्शन है, अगर आप उल्टी दिशा से चले, फिनोटाइप से जीनोटाइप पे नहीं, आप जीनोटाइप से फिनोटाइप पे जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग फ्रॉम phenotype to genotype, you are going from genotype to phenotype. When we will go genotype to phenotype, this is called reverse genetics, and when you will perform phenotype to a particular genotype, that is known as forward genetics. So I think this is very important to know. RDA and ROMA, this technique is widely used for study of differential gene expression pattern. So this technique we will discuss in upcoming lectures, and we have to understand that protein, basically when you are going to check these all data, then basic thing you have to perform Western blot, immunohistochemistry, that is you can use you can take a tissue and you can check and you can localize your particular infection pattern, and you can also perform ELISA, tandem mass spectrophotometry, that is MSMS, which I have already discussed. You can go and check the lecture. So basically what is our goal to say, this slide is discussing about, we are discussing here the different tools and techniques used in functional genomics and proteomics. So basic thing that is you have to use, that is mass spectrophotometry, that is tandem MSMS analysis. So for this you have to, I have already discussed, but here I just want to give you some recap. That is, you have to do the two-dimensional gel electrophoresis, or you have to run SDS page according to your protein nature. Then you will digest. When your digestion of protein will takes place, you can go through LCMS approach or MALDI-TOF to identify your protein, that is peptide, or through bioinformatics analysis you can validate the sequence pattern. So that is very much important to discuss. और इसके लिए मैं आपको अलग से भी लेक्चर बना के दूंगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, यू हैव टू वेट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो जस्ट you have to understand the linear format called as primary structure and hydrogen bond formed between them that will give rise to the secondary structure of protein. So primary structure and secondary structure have a major difference, that is the hydrogen bond. Presence of hydrogen bond is only available in the secondary and tertiary and quaternary structure. In primary structure hydrogen bond formation not takes place, but in primary cysteine bridge can be seen, SS bridge, that is disulfide bridge can be obtained in primary structure. So insulin is a primary protein rather than this is the secondary one. So alpha helices के बारे में क्या होता है, अल्फा हेलाइसिस क्या होता है, that I will discuss in further subsequent lecture.
and you have to understand that a single protein up to a tertiary structure, a single protein can fold by ionic interaction, van der Waals forces, and other ionic bond and other interaction also very much important to make a tertiary structure of protein. But when two or more than polypeptide attach with each other form a quaternary structure, so that quaternary structure, that example of my hemoglobin, and tertiary structure you can take example of myoglobin. So I will discuss in upcoming and subsequent lecture about that. Just we have to go through the just a flavor of this primary, secondary and tertiary and quaternary structure, because we have to understand that we are going to decipher any protein, we have to know the sequence, so structure is very important. So primary, a description of all covalent bond, है ना, कोवैलेंट बाउंड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड इसमें बनेंगे, एंड सीक्वेंस ऑफ रेसिड्यूज, दैट इज द लीनियर चेन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा और एक ही प्रोटीन, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन अगर फोल्ड होता है 3 डायमेंशनली, ठीक है, तो वो बनाएगा टर्शियरी. और जब मल्टी सब यूनिट प्रोटीन मतलब मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड इंटरैक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म a quaternary structure of protein. So if you will go and check the nature of protein of human genome, so it will vary on isoelectric point between 0 to 14. Why? Because the pH scale is only limit to 14. और PI क्या होता है, कैसे PI को हम निकालते हैं, ये सारा चीज़ आपको लेक्चर में समझाया गया है. अगर आप नहीं इसके बारे में जानते हैं तो आप हमारे लेक्चर पे जाइए, आप हमारे चैनल पे जाइए, खोजिए, और यू कैन लर्न दिस टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग. सो प्रोटीन ऑफ, हम इसको 3 भागों में तोड़ सकते हैं. दैट इज द फिजियोलॉजिकल पीएच कंटेनिंग प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन एंड द बेसिक प्रोटीन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर पीआईज. सो क्या क्या हो सकता है ना. तो डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन चेक कर सकते हैं, और इसके लिए आप पीसीआर कर सकते हैं, आरटीपीसीआर कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली 2 हम ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये आरएमएल रेस है और बहुत सारे टेक्निक्स हैं. आई विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स. बट यहाँ पे आपको बस छोटी सी आपको दिमाग में फ्लेवर डाल के रखना है कि हाँ, यही सारा स्टेप मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट करते क्या, दे आर जस्ट रीडिंग दिस डिफरेंट स्टेप्स, नथिंग मोर. यू आर जस्ट थिंक दैट दिस इज द फॉर्मेट एंड वी हैव टू थिंक ऑन ईच एंड एवरी लेवल. साइंटिस्ट और आप में बस इतना अंतर है, आप चीज़ों को बस थियोरेटिकली पढ़ रहे हो और हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, नथिंग मोर. So that is the DNA, that is RNA, that is mRNA, that is protein, and they undergo subsequent modification to give rise enzyme or other things, that is metabolites. ठीक है, तो RNA है, जब RNA की प्रोसेसिंग होगी तो मे बी अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हो, ठीक है, या फिर और भी जो है स्प्लाइसोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग हो, RNA की एडिटिंग हो, पॉली ए टेलिंग हो, कैपिंग हो, है ना. फिर ट्रांसलेशन में क्या होगा, ट्रांसलेशनल रेगुलेशन चेक करेंगे. ठीक है, कैसे प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करेंगे, एडवांस से या सेंगर से, आप बहुत सारा प्रोटीन की सीक्वेंसिंग आप कर सकते हैं. ठीक है, आप प्रोटियोलिसिस डिग्रेडेशन कर सकते हैं, या तो प्रोटीन की कंपार्टमेंटलाइजेशन चेक कर सकते हैं कि यह प्रोटीन कैसे कहाँ जाता है. जैसे KEDL, शायद आपको पता होगा, KEDL क्या होता है, एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड का जो कि बताता है कि एक गोल्गी अपरेटस में प्रोटीन है कि नहीं. ठीक है, तो गोल्गी के लिए प्रोटीन है, गोल्गी के अंदर कोई प्रोटीन जा रहा होगा तो उसे वापस वो अंदर बाहर करेगा. तो ये पार्टिकुलर स्पेसिफिक कंपार्टमेंटलाइजेशन चेक करना होगा, तो उसके लिए पार्टिकुलर सीक्वेंस होगा, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा ये कहाँ पे कैसे जा रहा है. तो लोकलाइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्लोरेसेंट लेवल टेक्निक आप यूज कर सकते हैं. जैसे आप GFP टैग करें या कुछ और भी जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है, जो फॉस्फोरेसेंस और केमिलुमिनेसेंस जो भी कंपाउंड है, आप उसे टैग करके कंपार्टमेंटलाइजेशन को चेक कर सकते हैं कि ये हमारा प्रोटीन कहाँ जा रहा है. ठीक है, सो दैट इज द सेम स्लाइड
यू कैन अंडरस्टैंड कि ये आपका जीनोम हुआ, इससे आपका आरएनए बना, आरएनए गेट गो अंडर स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के बाद प्रोटीन बना, उसके बाद भी फॉस्फोरिलेशन हुआ, ग्लाइकोसाइलेशन हुआ, अदर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो करके आप देख सकते हैं बहुत ही कम जीन है और इतने सारे प्रोटीन आपको मिल गया जो अननोन है। अननोन प्रोटीन आने का मेन रीज़न है, जीन तो सारा नोन है, जीनोम तो पूरा सीक्वेंस्ड है, बट प्रोटीन के बारे में बताना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ईच एंड एवरी लेवल पे क्या हो रहा है कि डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं और वो डिफरेंसेस क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रोटियोम बैलेंस कैसे करता है ना, बैलेंस पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को कैसे करता है। अब बहुत ज़्यादा प्रोटीन बने और बहुत ज़्यादा प्रोटीन डिग्रेड हो जाए तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, एक चेक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस और प्रोटीन का डिग्रेडेशन क्या करेगा, प्रोटीन के सेल में क्या करेगा, बैलेंस बना के रखेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमआरएनए कंसंट्रेशन अगर लो होगा तो एमआरएनए बनेगा, कोडोन बेसनेस को चेक किया जाएगा। ठीक है, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग जो है उसे क्या किया जाएगा, जिसमें माइक्रो आरएनएज हैं, इसके बारे में हम अलग से लेक्चर जब बताएंगे तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनर्जी एंड क्या होता है, टीआरएनए एंड फ्री राइबोसोम्स का क्या काम है, ये सब क्या करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब जब प्रोटीन डिग्रेडेशन करना है तो प्रोटीन कहीं ना कहीं लोकलाइज होगा, उसकी फोल्डिंग कराएंगे। अगर फोल्डिंग सही से नहीं होगी तो चैपरोन उसे क्या करेगा, फोल्ड करने की कोशिश करेगा, नहीं तो यूबिक्विटिनेशन की प्रोसेस होगी, प्रोटियोजोमल पाथवे शुरू होगा और वो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा, चाहे वो यूबिक्विटिन से हो चाहे वो लाइसोजोम के मेडिएटेड प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो, दोनों मेथड से हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्यूमर सप्रेसिंग p53 का काम क्या है। p53 को हम कहते हैं गार्जियन ऑफ द जीनोम। क्या करता है, एपोप्टोसिस को इनिशिएट कराता है। अगर कोई सेल खराब हो गया तो उसे मरना है, सेल अगर डैमेज सेल है तो दैट कैन गिव राइज टू प्रॉब्लम, सो दैट सेल मस्ट हैव टू डेड। सो फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूलेटिंग बाई इट्स एसिटाइलेशन, अब इसका एसिटाइलेशन होगा p53 का, सोमलाइलेशन होगा तो क्या होगा, p53 एक्टिवेट कर देगा एसिटाइलेशन, इसके बाद क्या होगा, उसकी क्या होगी, एपोप्टोसिस शुरू हो जाएगी। तो ये क्रॉस चेक है कि कैसे प्रोटीन क्या करते हैं, आपस में बैलेंस करके चलते हैं, ज़्यादा बना तो कम कर लो, कम बना तो ज़्यादा बना लो। ठीक है, और ये इसी मशीनरी को पढ़ना, इसी मशीनरी को चेक करना ही प्रोटियोमिक्स स्टडी कहते हैं। और प्रोटियोम की स्टडी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसको समझने के लिए आपको बहुत धीरे धीरे बारीक से एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है, सो प्रोटियोम के साथ चैलेंज क्या है, वेरी हाई डायनेमिक रेंज, वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो प्रोटीन की 750 किलो डाल्टन तक का प्रोटीन है, तो इतनी बड़े बड़े प्रोटीन की स्टडी, पीआई की भी बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, हाइड्रोफोबिसिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरियस स्टेबिलिटीज। प्रोटियोम डायनेमिक्स होता है, हाई कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सेल में 10⁵ से 10⁻10 तक का अबेंडेंस जब रिलेटिव होगा, अबेंडेंस होगा सेल के अंदर, तब डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे। ठीक है, प्रोटियोम का एम क्या है, टू एनालाइज द लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्रोटीन प्रेजेंट इन ए सेल और ए टिश्यू इंक्लूडिंग देयर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एट ए पर्टिकुलर गिवन टाइम इंटरवल। ये आपको दिमाग में याद रखना है हमेशा। ठीक है, प्रोटियोमिक्स अप्रोच इंक्लूड क्या क्या करता है, तो प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, प्रोटीन क्वांटिफाई करेंगे, है ना, और उसे डिफरेंशियली आप एनालिसिस करेंगे, उसके बाद प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन चेक करेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन चेक करेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स पर आप बात करेंगे। ठीक है, प्रोटियोमिक्स इज मेटाबोलोम है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट ओमिक्स डेटा, ओमिक्स मीन्स स्टडी। ठीक है, डाटा शुड लीड्स टू मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम एट ए मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर आपको पढ़ना होगा, तो ये सारी चीज़ों को बहुत बारीक से स्टडी करना पड़ेगा, तब एक आप प्रोटियोमिक्स के थोड़ा बहुत जानकार हो सकते हैं। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस two-dimensional gel electrophoresis and mass spectrophotometry, but I am unable to discuss liquid chromatography,
that I will discuss in subsequent lecture. So 2-dimensional जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, आप आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या होता है कि पर्टिकुलर अरेंज हो जाता है पीएच ग्रेडियंट के अनुसार। आप देख रहे हैं शुरुआत में बहुत जैसे तैसे है, लेकिन जब पीएच ग्रेडियंट आप दिए तो 3 4 5 6 क्या हुआ, एक पर्टिकुलर तरीके से जिसकी जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो क्या होगा कि वैसे वैसे क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर वेव में सज जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि वो क्या हो रहा है, पर्टिकुलर जहाँ जहाँ उसका पीआई है, पीआई के अनुसार वो क्या हो रहा है, अपने आप वो एडजस्ट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, so that is the 2-dimensional gel electrophoresis image which I have already discussed a lot in the previous lectures. So mass spectrophotometry में क्या होता है, आयन सोर्स होता है, मास एनालाइजर होता है, मास डिटेक्टर होता है ना, m/g रेशियो के बेसिस पर क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री काम करता है। These all things are discussed in my previous lecture. Please my dear friend, go to the subsequent lectures which have been already discussed. Then go and try to learn from that lecture. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे बस मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैट्रिक्स जो होता है सैनेपेनिक एसिड का हो सकता है या 4 हाइड्रोक्सी सिनामिक एसिड का भी बन सकता है, जो कि जिसके अंदर आपका पेप्टाइड होता है। ठीक है, आप फिर क्या कर सकते हैं, लेजर से आप सिनामिक हाइड्रो से इसके सैनो हाइड्रोक्सी सिनामिक एसिड आपका जो मैट्रिक्स है, इस पर आप क्या कर रहे हैं, यूवी लेजर के थ्रू क्या कर रहे हैं, बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, ताकि आपका जो ड्रॉपलेट है वो ऊपर उठेगा और फिर वो डाउटर ड्रॉपलेट में चेंज करेगा और माल्डी के थ्रू वो क्या होगा, सेपरेट होकर के आपको पता चलेगा कि आपका प्रोटीन कैसे है। ठीक है, आई थिंक आई हैव डिस्कस कि जैसे जैसे छोटा मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, मिडिल वाला बीच में रहेगा, हाई वाला नीचे रहेगा, और वैसे ही वो डिटेक्टर के पास जाएगा और डिटेक्ट होकर के सिग्नल आपको अकॉर्डिंग टू देयर m/g रेशियो जा करके वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, so these things I have already discussed a lot, so just try to stop my video and try to listen. स्ट्रैटेजी क्या है प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए, मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि सैंपल होगा 2-डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले प्रोटीन को आप लेके गए, ठीक है, आप उसके बाद इलेक्ट्रोब्लॉटिंग करेंगे, साइनोजिन ब्रोमाइड या ये केमिकली आप साइनोजिन ब्रोमाइड केमिकल एजेंट है, आप उसको क्या करेंगे, उसके थ्रू डाइजेस्ट करें, या तो फिर आप प्रोटीन के ट्रिप्सिन के थ्रू डाइजेस्ट करें, फिर आप क्या करें कि आप पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग करें, चाहे आप पिडमान डिग्रेडेशन करें या सैंगर सीक्वेंसिंग करें। ठीक है, या फिर आप चले जाएं जेल बेस्ड टेक्निक पे, जेल को क्या करें, पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग करें, पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग करें और पेप्टाइड को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, यहाँ पे पेप्टाइड है आपका, 2-डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करके स्पॉट लेके गए और उसके थ्रू m/g रेशियो के बेसिस पर आपका पॉलीपेप्टाइड आया। ठीक है, और इसको कहते हैं जैसे इट इज योर फिंगरप्रिंट, सो दिस इज ऑल्सो ए फिंगरप्रिंट फॉर प्रोटीन। सो दिस प्रोटीन कैन बी एनालाइज्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स by the help of bioinformatics tools, and you can document in your thesis. So proteome enables qualitative and quantitative display of protein expression pattern. ग्लोबल चेंजेस आप देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं उसको, फिर कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कंट्रोल वर्सेस ट्रीटमेंट के बीच, है ना, उसके वेरिएंट्स क्या क्या हैं आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस में बी डेवलप, आप उसके थ्रू आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन क्या है इनके, तो लिमिटेड क्या है कि सैम्पल मटेरियल क्या है कि आप एक बार में बस एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। आपको पूरी जानकारी सेल के बारे में अगर आप एक बार प्रोटीन निकाल के सोचें कि हम पूरा सेल के बारे में जान लें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। So sample can degrade because protein is highly degradable. Very dynamic and require very sophisticated handling procedure. Post-translation modification that often give you the result, and it can always hinder your mind.
अगर आपको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन चेक ही नहीं करना है और इफ़ यू आर गेटिंग सम देन इट्स डिफिकल्टी टू hinder to stop post translation modification. You have to perform some other experiments. So specificity among tissue development and temporal stage. कहीं ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक टिश्यू में स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन ही क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे. ऐसा तो नहीं है कि नर्व सेल के अंदर कोई और काम होने लगेगा, मसल सेल कोई और मसल का काम छोड़ के कुछ और करना शुरू करेगा, आई का सेल विजन को छोड़ करके कुछ और तो नहीं कर सकता. यानी दीज ऑल आर वेरी स्पेसिफिक. सो पर्टिवेशन जो होता है डिजीज ड्रग और आप उसके बीच में डिजीज और ड्रग को देख करके आप कंक्लूजन तैयार कर सकते हैं. यू कैन गिव यू द यू कैन इंटरप्रेट द डेटा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड ड्रग गिवन पेशेंट्स. ठीक है. आप पीसीआर तो आप जान ही रहे, हर जगह पीसीआर है. ठीक है. तो पीसीआर एक मेरेकल टूल्स है जो प्रोटियोम्स में भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीनोमिक्स में ज़रूरी है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. आज मुझे सवाल आपसे पूछना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि पेल्टर इफेक्ट क्या है और थॉमसन इफेक्ट. ये दोनों इफेक्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड आई जस्ट वांट टू गिव यू जस्ट अ फ्लेवर दैट दिस इफेक्ट इज़ ड्रास्टिकली एंड कन्वेंटली यूज इन पीसीआर. पेल्टर इफेक्ट पे ही पीसीआर बेसिस है, पेल्टर इफेक्ट पे ही पूरी पीसीआर की मशीनरी चलती है. जो ग्रेडियंट पीसीआर आप करते हैं वो इसी के बेसिस पे चलता है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.